أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة ما شاء الله ما شاء الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. درود پڑھ محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی حسین کی ذات بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ذات مقدس کی لال ہے کتاب ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. بسم اللہ. جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا نام کلام موضوع کلام انجام دیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جناب زکریا کا ذکر کرتے ہیں اور ذات مقدس زکریا علیہ السلام کا ذکر کر کے اس کی بیٹے کی ولادت کا ذکر کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حبیب کو کہتے ہیں اے میرا حبیب ان اپنے اصحاب کو زکریا کا ذکر سناؤ تاکہ اس کے بیٹے کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس کی معرفت کے بعد جب یہ سمجھ جائیں گے پھر تیرے حسین کو بھی سمجھ جائیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اپنے رب کی رحمت کا ذکر کرو اور اس کے بندے کا رحمت کے ساتھ اس بندے کا ذکر کرو جو بندہ اللہ کا کام تھا زکریا تھا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. کافی پوائنٹ ہیں سمجھ لگے تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب سے ندا کرتے تھے رب نداء خفیہ بالکل آہستہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے یا رب. آیت کو کے جملے ہیں کہ باراللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے. یا آل یعقوبہ مجھے ایک ایسی اولاد فرما جو میری اور میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اللہ تعالیٰ کیونکہ ابراہیم علیہ کی عمر جو تھی زکریا علیہ السلام کی 90 سال یا 99 سال تو روایتوں میں اور اولاد نہیں ہوئی تھی. تمنا جب 90 سال کے بعد یہ دعا مانگتے تھے تو آیت کے جملے ہیں نداء خفیہ. آہستہ سے دعا مانگتے تھے. جب اللہ سے دعا مانگتے تھے تو بلند آواز سے مانگنی چاہیے تھی. اس آہستہ کیوں مانگ رہے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ کہ طبی چیز ہے اور عادتاً یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جب اللہ اولاد نہ دے نا 80 سال کے بعد لوگوں کو بھی کہے یا کسی کو بھی کہہ دے منبر پہ مولانا صاحب میرے لیے اولاد کے لیے دعا کرو، میرے لیے اولاد نرینہ کے لیے میرے لیے دعا کرو، تو لوگ بھی اس کی طرف دیکھیں گے عجیب ہے یار. قبر میں لگتے ہیں آپ اللہ سے ذریہ طلب، آپ اللہ سے اولاد طلب کر رہا ہے. اگر اللہ اولاد دینی ہوتی تو اس وقت دے دیتی. آپ 80 سال کے بعد اولاد دے رہا ہے. یعنی ایک طبی چیز ہے، لوگ اشکال کرتے ہیں تو اس لیے یہ اس کو لوگوں کے اشکال کے ڈر کی وجہ سے زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور جس کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے نداء خفیہ، اور یہ دعا مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرمائی، یحییٰ نام میں اولاد عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ ولم نجعل له من قبل سمیہ. یہ آیت مبارکہ ہے جس کے ساتھ مشابہات کرتے ہیں جناب یحییٰ اور جناب مولا شہنشاہ کربلا حسین بن علی کی.
اور یہ سب نے برادران نے پڑھا ہے کہ مولا جب مکے سے چلے تھے تو رستے میں اکثر یحییٰ کا ذکر کرتے تھے، اور کئی مشابہات جو ہیں ملتی ہیں خصائص حسینیہ میں بھی ہے، اور ایک کتاب آقا محترم کے پاس موجود ہے، اور بڑی محنت کی رحمۃ اللہ علیہ نے، عباس یزدی اسماعیل یزدی جو انہوں نے کتاب سردار کربلا، انہوں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان نکات کو جمع کیا ہے۔ کہیں پر خصائص حسینیہ لکھے ہیں تقریباً 40 کے قریب، پھر مشابہات لکھے ہیں تقریباً 18 یا 20 تقریباً بنتی ہیں جو جناب یحییٰ اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مشابہات ہیں۔ ان میں سے یہ پہلے مشابہات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ ایک مشابہت یہ ہے کہ دونوں کے حمل کی مدت جو 6 مہینے تھی، یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور مولا حسین علیہ السلام کی بھی، یہ اتفاق ہے۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، آنے سے پہلے اللہ بشارت دے رہا ہے کہ ان قریب اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے کہ ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ تطبیق ہے مولا حسین علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب انبیاء مولا دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بشارت دی تھی، اور جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام و یخصک بتحیۃ والاکرام، ذات مقدس آپ کو درود و سلام کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ وَيُبَشِّرُكَ بِمَوْلُودٍ یولد من فاطمہ، اور تجھے اللہ ایک ایسے مولود کی خوشخبری دے رہا ہے جو فاطمہ سے ہوگا۔ پھر اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرا حبیب سَتَقْتُلُ أُمَّتَكُ الْبَاقِيَةَ، اس بیٹے تیرے کو تیری امت تیرے بعد شہید کرے گی۔ یہ دونوں بشارت اس نے بھی دی تھی، اور پھر اللہ اس یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ دوسرا یحییٰ علیہ السلام کو بشارت دینے کے بعد اللہ نے یہ کہا تھا اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں جو آپ کو بیٹا عطا کر رہا ہوں اس کا نام آپ نے نہیں رکھا، میں خود لکھ کر بھیجا۔ اس کا نام جو میں بشارت دوں گا نام بھی میں ہی رکھوں گا۔ ادھر مولا حسین علیہ السلام کی جب بشارت دی، جب دنیا میں آئے تو جناب تو بی بی نے کہا کہ یا بتا ماذا نسمی لہذا المولود، اس بچے کا کیا نام رکھیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ، کیونکہ پہلے بیٹے حسن کا نام بھی میں نے نہیں رکھا تھا، میں نے بھی اللہ سے رکھوایا تھا، اس کا نام بھی میں اللہ ہی سے رکھواؤں گا، اللہ ہی بھی اس کا نام رکھے گا، کیا رکھنا ہے؟ جبرائیل نازل ہوئے اور آ کر خوشخبری دی اور مبارک دی، اور مبارک دینے کے بعد کہا کہ اس کا نام حسین رکھو۔ محمد علی محمد صلوات یحییٰ کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا، بشارت دی تھی۔ حسین کا نام بھی بشارت، الحسین کے بارے میں بھی اللہ نے بشارت دی تھی اور نام اللہ ہی نے رکھا تھا۔ اور تیسری جو صفات اسی آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمائی ہے یا زکریا کو خطاب کرتے ہوئے وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا جو میں تیرے بیٹے کا نام رکھوں گا جو آئے گا دنیا میں، ابھی آیا نہیں ہے، اس دنیا میں آئے گا، اس کا نام میں نے زکریا یحییٰ رکھا ہے۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، 1,24,000 انبیاء کی فہرست میں بس یحییٰ ایک ہی ہوگا اور نہیں ہوگا۔ ادھر جناب حسین علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا حبیب میں نے آپ کو بیٹا دیا اور اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ جس طرح یحییٰ انبیاء کی لسٹ میں ایک رکھا تھا، اب میں وعدہ کرتا ہوں انبیاء کی لسٹ میں نہ انبیاء کی لسٹ میں حسین نامی کوئی ہوگا، اور ائمہ کی لسٹ میں ایک ہی حسین ہوگا اور نہیں ہوگا۔
दोनों की बशारत अल्लाह ने दी, दोनों का नाम अल्लाह ने रखा, और इन दोनों के अलावा किसी और का नाम ना याह्या रखा ना हुसैन रखा। और देख लेना हमारे अंबिया में से, हमारे अइम्मा ताहिरीन अइम्मा सलाम में से अंबिया वाले नाम हैं, अंबिया वाले नाम हैं, लेकिन याह्या वाला नाम नहीं है। हमारे अंबिया अइम्मा में याह्या वाला नाम मूसा है, नबी का नाम था, और मोहम्मद 4 का नाम है, वो भी नबिया। तवज्जो है ना मेरी बात पर? और लेकिन हुसैन अंबिया में भी नहीं आया और अइम्मा में बस एक है, अल्लाह ने इसे। और दोनों जो थे अल्लाह ने दोनों को वजूद नूरानी अता किया था। याह्या के बारे में आया मुबारक में मिलता है, जब याह्या घर में चलते थे, वकानल बैतु युदियु बिनूरे बिवजूद नूरे, याह्या जब भी घर में चलते थे तो घर जो था याह्या के नूर से मुनव्वर होता। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इसे सरदार अंबिया सरदार करबला में लिखा है कि जब मौला अपने मादर मुबारक के बतने ताहिरा में 5 महीने के थे, उस वक्त बीबी नकल करती हैं कि जब मेरे बतन में मेरे हुसैन 5 महीने के थे, तो जब घर में मैं तन्हा होती थी रात के वक्त, मेरे बतन मुबारक से इतना नूर नजर आता था कि मुझे दिन नजर आता था। और दोनों याह्या के बारे में मिलता है कि जब पैदा हुए थे ना, तो अल्लाह ने उसको ऊपर उठा लिया था दूध पिलाने के लिए। माँ का दूध नहीं था, तो ज़ात मुकद्दस ने याह्या को ऊपर ले गई थी, वहां पर जन्नत की नहरों से शराब किया था, जन्नत की नहरों से शराब किया था। और जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आए थे, उस वक्त मादर गिरामी का दूध नहीं पिया था, वही वाजिबी दूध पिया था जिसको पहली घुट्टी कहते हैं। उसके अलावा बीबी का दूध ना हुआ था। और उसके बाद उदाहरण याह्या को अल्लाह ने जन्नत की नहरों से शराब किया था, इधर मौला हुसैन को अल्लाह ने वाड़े से जन्नत के हाथों से शराब किया था। माले के जन्नत से शराब किया है। और रिवायत में कभी जुबान चुराते थे और कभी हाथ का अंगूठा चुराते थे, और कभी ये नोट किया आपने, देखिए ना हमारे यहाँ अब ये सब अंगुलियों में से ये मोटा होता है। ये मैं नुक्ता दे रहा हूँ, दूध पड़े मोहम्मद आज के जमाने में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए ना, 1 महीना के भी हो, 8 महीने से कम ज्यादा हो ना, अगर वो खातून माँ जो है वो बच्चे को जब रोए तो दूध की बजाय ये इसको हमेशा माँ जो है कि ये अंगुल देती है, ये देती है मुंह बच्चे के मुंह में, ताकि बच्चे को एक लालच मिलता रहे कि ये दूध पी रहा है। ये अगर कोई मादर कोई माँ अपने बच्चे को ये अंगूठा मुंह में दे ना, तो सब मस्तूर है उसको देख कर उसका मजाक उड़ाएंगी, यही कहेंगे हमारी जुबान में कितनी भी लल्ली है, इस्तेमाल नहीं करते आप, कितनी बेवकूफ है। बच्चे का मुंह छोटा है और ये अंगूठा दिए हुए है, अब समझ लगे कि नबी ये अंगूठा क्यों देते थे हुसैन को दूध चुसाने के लिए। कभी उस अंगूठे से दूध निकलता था, कभी उस अंगूठे से जो शहद निकलता था। जरूर पढ़े और इस रिवायत में मिलता है जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो ज़ात मुकद्दस ने असहाबे खमसा का नूर उसकी पुश्त में रखा था, उसकी सुल्ब में था, नूर था। तो आदम अलैहिस्सलाम जब नूर के देखते थे तो तमन्ना वो ख्वाहिश करते थे, मैं इन असहाबे खमसा पैतन पाक के नूर की ज़ियारत करता रहूं। और आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ज़ात बारिला आप इस तरह करें, आप इस नूर जो मेरी सुर्ब मेरी पुश्त में आपने रखे हैं ना, मुझे ये नूर बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर ये हो सके तो इन नूरों को मेरे सामने करें ताकि हर वक्त मैं इन अनवार इलाहिया की ज़ियारत करता। अल्लाह ताला ने आदम की दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ने इन अनवार खमसा को आदम के दाएं हाथ में रख दिया।
दाएं हाथ में रख दिया। इसको निस्बत दी गई नबी अकरम के नूर से, नूर जिसको हम कहते हैं, इसको नबी के नूर से निस्बत है। और इसको है जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम के निस्बत है। और ये जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से निस्बत है। और इसकी निस्बत जनाब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। और इसकी निस्बत मज़लूम करबला शहंशाह करबला की तरफ ये निस्बत है। तवज्जो किया आपने? अरबी में उंगली को क्या कहते हैं? उंगलियों को कहते हैं असाबिअ, इसी कहते हैं असाबिअ। लेकिन हर एक का अलग-अलग नाम है। अंग्रेजी में भी चली जाए फिंगर ही कहते हैं, चले जाएं उसका भी, लेकिन हर एक उंगली का नाम अलग होगा। और इसमें अंग्रेजी में इसको, अरबी में क्या कहते हैं इसको? इबहाम। तो अल्लाह ने जब इसकी निस्बत हुसैन की तरफ दी तो जब लुगत अरब आई तो इसका नाम इबहाम रखा गया। इबहाम किसको कहते हैं? ये चीज मुबम है, यानी जो किसी की समझ में ना आए उसको मुबम कहते हैं। आप समझ लगी ना इसको क्यों इबहाम के? हुसैन हर किसी की समझ में नहीं आता, उसी की समझ में आएगा जिसके दिल में विलाय हुसैन हो। और एक और नुक्ता दे रहा हूँ, शायद पहले मैंने यहाँ पर पढ़ा या नहीं, एक और नुक्ता दे रहा हूँ। ये अलबत्ता मैं रिवायत में तजारे बयान कर रहा हूँ, तजारे। अब जब इंसान महफिल में बैठा होता है ना कभी, तो वो सोच रहा होता है कुछ, बैठते हैं पुरानी कोई ऐसी बात याद करता है, उसको हंसी आ जाती है, इतनी हंसी आती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और लोग यार क्यों हंस रहे हैं? वो वाक़या भी जिक्र करना खजाला समझता है, वाक़या भी शर्मसारी समझता नहीं, जिक्र करता, लेकिन उसको बार बार हंसता है किसी का, क्यों हंस रहे? बेवकूफ हो। अब उस किसी जब इंसान को हंसी आए और उसकी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हंसी न रुकने पाए, उसका एक बेहतरीन रोकने का तरीका ये है कि वो फौरन अपने अंगूठे की तरफ देखे, उसकी हंसी बंद हो जाए। ये आप तजर्बा करके मुझे बता देना। ये तजारब शुदा है कि जब इंसान फौरन किसी हंसे किसी की तरफ देखे तो उसकी हंसी फौरन बंद हो जाएगी। ये मुशाबहात थी जिसको कहते हैं इबहाम। जब मौला आए तो वो वाक़या पुत्र वाला मशहूर मारूफ है कि वो आए और वो एक उसको उठा कर ले आए, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि इसको जाकर मौला हुसैन के झूले के साथ मस करो। मौला खुद हुसैन अपने कपड़ों में लिपटे हुए थे, ऊपर कपड़े लिबास था, फिर उसके बाद झूला था, फिर कितना फर्क था। तो नबी कह रहे हैं कि झूले के साथ इसको मस करो। जब जिसके झूले में इतनी शिफा है वो तो हुसैन में कितनी शिफा अंबिया की जिंदगी पढ़े, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़े कि 950 साल कुरान में है। 950 साल तबलीग की थी, जाते थे तबलीग करने के लिए आते थे, लोग मारते थे, पत्थर मारते थे, जख्मी हो जाते थे, पत्थरों में दब जाते थे। तरीके अंबिया पढ़े कि सूरह अंबिया में पत्थरों में दब जाते थे, वो खुश होकर चले जाते थे। जो कूफे के लोग थे, वो कूफे के बड़े देहात में रहते थे, जहाँ कश्ती बनाई थी उन्होंने, पत्थरों में दब जाते थे, वो खुश होकर अब मर गया, अब कल नहीं आएगा। फिर जब अल्लाह देखता था कि मेरा नबी नजी पत्थरों के तले दबा हुआ है, मेरे लिए काम कर रहा है और अज़ियत और तकलीफ उठा रहा है, जबराइल को हुक्म देता था, और जबराइल जाओ मेरे नूह नजी को जाकर निकालो। जबराइल आता था, अपने पैरों से पत्थर हटाता था, उठाता था, जख्मी होता था, लहूलुहान होता था। जबराइल अपने पर मस करता था नूह को, जख्मी नूह को अपने पर मस करता था, नूह को शिफा मिल जाती थी, शिफा मिल जाती थी, नूह चले जाते थे, दूसरे दिन फिर आ जाते थे, क्योंकि इसलिए कि मलाइका के पास उसको शिफा मिल जाती थी। यानी मलाइका के परों में अल्लाह ने अंबिया को शिफा दी है। मलाइका के परों से जब अंबिया जख्मी हो जाएं तो मलाइका के परों से शिफा मिलती है। जब परों को जब उन मलाइका के पर जल जाए, हुसैन के पंखुड़े से शिफा मिलती है।
हुसैन के पंगूरे से शिफा मिलती है, ये उनके किताबों में भी है। अब जो है हम आप जरी का गोश्त लेते हैं तो उससे शिफा तलब करें तो कोई ऐब नहीं है, क्योंकि नबी की सुन्नत है कि नबी ने हुक्म दिया था। फिर देखिए वो सवारी वाली बात मशहूर है, अब कितना देखा हो आपने खुद कई दफा पढ़ी है कि मदीने की गलियों में जाकर और उन्होंने कहा बाबा आज तो नाना आज तो ईद है, हर किसी के पास सवारियां हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो नाना जान हमें भी सवारी चाहिए। और नबी के पास घोड़े नहीं थे, ऊंट नहीं थे, दूसरे बच्चों की तरह दे देते सवारी, क्योंकि तारुफ कराना चाहते थे कि मेरे ये बेटे इतने बुलंद हैं जिनकी मैं नबी सहारी बनता हूँ। फिर बिठाया ऊंट पर और उन्होंने क्या कहा, अय्युहा अन्नास हाज़ा हुसैनुन फारिफूहु, ये मेरा बेटा हुसैन है, इसको पहचानो। फारिफूहु या आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत को तमाम सुन जाते हैं। फारिफूहु को दिक्कत के साथ देखना चाहिए। जब हम इब्तिदाई किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर तारीफ करते हैं, अन्नहु इल्मुन युरफु बिआखिर कलिमात सलास युरफु, और कहा है कि इल्मुन, फिर आगे कहा युरफु, युलम नहीं कहा, युलम कह देते तो पता चलता। किताबों की तारीफों में देखें पहले कहा है हुआ मंतिक इल्मुन, जो रफ आगे इस्तेमाल हुआ है, यानी बताना ये चाहते हैं कि इल्म और चीज है, मार्फत और चीज है। इसलिए यहाँ से पता लगे इल्म की क्या तारीफ है। वो कहते हैं इल्म की तारीफ ये है कि इदराकुल अशिया बिकुल्लियात ही, इल्म की तरफ देखने जाकर मंतिक हमने पढ़ी जो थी, इदराकुल अशिया बिकुल्लियात ही। मार्फत किसे कहते हैं, वो कहते हैं मार्फत ये कहते हैं कि इदराकुल अशिया बिजुज़ियात ही, जुज़ियात के साथ। अब आपने ज़ियारत के जुमले कई दफा पढ़े हैं कि आरिफन बेहक़ ही, आलिमन नहीं है, आरिफन बेहक़ ही, कि मैं इसको उसी तरह इमाम समझता हूं कि हुज्जत खुदा है, इसकी मैं दिल से इत्तेकाद और यकीन रखते हुए, मार्फत रखते हुए इस इमाम की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ, वाला मेरी ज़ियारत को कबूल फरमा। मदीने की गलियों में तारुफ करा रहे हैं, सवारी उनके हाथ में, उनके नाना सवारी में तो बागें होती हैं। अल्लाह के नबी ने उन जुल्फों को बेटों के हवाले किया जिन जुल्फों की अल्लाह ने कसमें उठाई। अब ये देखिए नबी कौन, उसका तारुफ देख लिया आपने, जुमरा आपकी ज़हमत को तमाम करूं। नबी कौन है जिसके बारे में कुरान ने तारीफ की, कितने मकाफ़ैज़ा कज़ल्लाह निसा का नबी नमाते हैं जो मेरी किताब में हिकमत है, सुम्मा जाकुम, जब अल्लाह ने पैमान अहद लिया अंबिया से कि एक लिया कि तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, उस पर ईमान भी लिया, वलन तंसुरुन्ना भी, उसकी मदद भी करना। अंबिया को उस वक्त नबूवत नहीं मिली जब तक आखिरी नबी पर ईमान नहीं ले आए। अंबिया का सरदार, इतना बड़ा मकाम, अंबिया आखिरी नबी के ताबे। अब जो सवारी होती है किसके ताबे होती है, जब अंबिया नबी के ताबे हैं तो हुसैन के ताबे कौन हुआ। किसी ने कह दिया था नेमल मरकब, कितनी बेहतरीन सवारी है। अल्लाह के नबी ने कहा बदबख्त जरा गौर कर, आपने तवज्जो नहीं की, ये तो देख ऊपर कौन बैठा है, वो नेमा है। और आखिर में दुआ है खुदा में इन बेहतरीन अच्छी तरह आले मोहम्मद की खिदमत